Alright, hi guys. Welcome to our today's session. I am Dr. Siraj Ahmed, your faculty of pharmacology, and today I am going to discuss with all of you guys what should be your strategies, your plan, and your approach towards the examination. Given the next 50-55 days that we have in hand, how you should utilize this time, how to make a very proper schedule which you can, use it very effectively for your examination. The schedule that we are going to discuss today has been used. It has been widely tested by your seniors from last 6-7 years. I would say around 12 to 14 batches have utilized this schedule and they have given brilliant result in their examination. ठीक है? So basically schedule बनाने के साथ साथ I will also be discussing with all of you guys that आपका approach क्या होगा, what should be your mindset. तो एक strategy kind of class plus scheduling class. This is going to act as a 2-in-1 kind of class, right? Now with the date of examination has already been announced and since the form is already out, most of you guys must be thinking कि यार थोड़ा time और मिल जाता है ना, how I wish that I would get at least a week or 10 days or 20 days. The same thing you will be thinking after 4 weeks or 5 weeks or even after a month as well. Same kind of thinking will be coming. So why not utilize the time that we are having in a very smart way so that ये वाली thinking हमारे दिमाग में ना आए कि यार काश 5 दिन और मिल जाता या 10 दिन और मिल जाता. We don't want to have that kind of thinking right in our mind. So let's go and make a plan that we are going to utilize and don't think about कि life fair नहीं है या life has become unfair for me, है ना. मैं चाह रहा था एग्जामिनेशन दिसंबर के बजाय जनवरी में गया और जनवरी के बजाय फरवरी में चला जाता या मार्च में चला जाता. तो अगेन लाइफ इज नेवर फेयर एंड वी कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम. बिकॉज पहले क्या था, एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड इन दिसंबर एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट समवेयर अराउंड 2nd to 3rd week of December examination will be done, but now we have got 1 month का extra time. So let's utilize that 1 month का extra time. Okay, so don't complain about this and don't think negatively because again the minute you plan something positive, एक negative जो thought होता है ना वो hit करता ही करता है कि यार काश ऐसे होता तो कुछ और हो जाता है ना, तो वो रहता ही रहता है. Don't think negatively about this one. Now right now I am telling to all of you guys that it's high time that you plan your revision and I'm pretty sure most of you guys have started already. For some of the students, those who are still into their finishing phase of their batch, because some of you must be attending regular classes and you're trying to finish your batch, so try to finish your batches that you're having and at the parallel में don't think कि batch finish हो जाएगा then I will start the revision. नहीं, parallel में ही you will have to start planning your revision and you will have to continue your revision. ठीक है? Right now since the forms are out, it's high time for all of you guys that plan and start your revision and learn not to leave the weak areas. Now whenever I say weak areas, most of you students get a little feel little troubled कि यार weak area ये तो मेरा anatomy या ये मेरा pharma या ये मेरा micro या biochemistry, this is my weak area and I'm not sure how I did in the last time, but this time I'm again not feeling sure about this one. So again इस वाली feeling से बाहर आइए जिसमें आप sure ही नहीं हो पा रहे कि मैंने पहले क्या किया था और अभी आने वाले last 4-5 month में क्या किया और आने वाले 2 मंथ में क्या करूंगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है. आई विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. डू नॉट प्लान टू लीव एनी सब्जेक्ट. सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, राइट, देयर आर सम ज्ञानी पुरुष है ना जो या ज्ञानी स्त्री जो भी है ना, दे आर गोइंग टू गिव यू डेटा और इन्फॉर्मेशन कि 12 सब्जेक्ट कर लो, आपको तो 150 लेकर आने आराम से हो जाएगा. अगेन ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके और जितनी तेजी से हो सके भागिए, वहाँ से भागिए, वहाँ से दूर भागिए, है ना. बिकॉज ये ज्ञानी लोग जो आपको बोल रहे हैं 12 सब्जेक्ट में से पढ़ के 150 ले आओ. इमेजिन मैं तो बोल रहा हूँ कि 300 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करके 150 लाना मुश्किल है. आउट ऑफ 300 ब्रिंगिंग 150 इज लिटिल डिफिकल्ट. हाउ कैन यू प्लान टू ब्रिंग 150 आउट ऑफ 200 मार्क्स? वो डिफिकल्टी लेवल को फर्दर इंक्रीज करेगा. So please do not plan to leave any subject. Don't even if it is weak area, how to tackle weak area वो मैं बता दूंगा आपको slowly and slowly as we proceed in the slide. And जब 19 सब्जेक्ट है तो 19 सब्जेक्ट है, not 20, not 18, it's 19, right? When I say do not ignore your weaknesses, first and foremost you will have to identify your weakness कि हमारा weakness है क्या. So अपने आप से पूछिए, ask yourself ना, एक retrospective analysis करिए, एक introspection करिए आप खुद से कि what is my weak area. You will find that 3-4 subjects are there, right, which is relatively much weaker for all of you guys. Now if you are saying कि सर मेरे तो 19 के 19 वीक है ना, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है. आपको फेस टू फेस हमसे मिलना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में करना क्या, आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे. एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दोस, है ना. कुछ एरिया वीक होते हैं सभी के, 3-4 सब्जेक्ट अगर वीक हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एंड एक्सेप्ट इट. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स इट. सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट. दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप.
Once you have identified, let's say you have identified that your weakness is pharmacology, microbiology, anatomy, physio, biochem, whatsoever. It depends है ना, आपका क्या, किसी का सर्जरी वीक होगा, किसी का मेडिसिन होगा, किसी का फार्मा होगा, किसी का जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई भी 3-4 हो सकते हैं. Once you have identified it, then you start make it a list, है ना, आप एक लिस्ट बनाइए, make it a list and break them into, let's say, multiple small fragments, है ना. So I always utilize and say that use the fragmentation technique. Do not be frightened, है ना. Use the fragmentation technique. जैसे कि मान लीजिए you are the one that you are feeling that anatomy is weak or pharma is weak. Let's talk about my subject only. Pharma is weak. So I would say don't be frightened by the pharma, है ना. फार्मा के टॉपिक को मल्टीपल फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दो. मान लो आप एएनएस को स्टार्ट कर रहे हो, तो यू स्टार्ट कवरिंग एएनएस लेट्स से 40 मिनट्स ऑन द डेली बेसिस. यू कंटिन्यू योर रेस्ट ऑफ द रिविजन, यू प्लान योर जितने शेड्यूल्स हैं, व्हाटएवर सब्जेक्ट्स आर देयर, आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू प्लान दैट एज वेल. बट अपने स्टडीज, अपने प्लान के साथ साथ इन वीक एरियाज को एक पैरेलल में रखिए, पैरेलल में चलने दीजिए 40 मिनट्स ऑन द डेली बेसिस. 40 मिनट्स, तो लेट्स से यू आर कवरिंग इन 40 मिनट्स 3 to 4 पेजेस. इट्स ओके, 3 to 4 pages, cover it, close it, then after that start your usual schedule, usual revision. Next day what you do, whatever 3 to 4 pages that you have read, the first 5 to 10 minutes at least flip the pages, check it out, what you have read yesterday, and whether you are able to recall it or not. Because the more you see, the more you try to bring the things in front of your eyes, the better chances are going to be that you will be able to recall in your examination. जितनी बार आप चीज़ों को अपनी आंखों के सामने से लेकर जाओगे, उतना ज़्यादा चांसेस बनता है कि आप उन चीज़ों को रिकॉल भी कर पाओगे. ठीक है, तो जब तक चीज़ों को आंखों के सामने से लेके नहीं जाओगे, ये कहना मुश्किल है कि आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाओगे. ठीक है, सो रिवीजन अगेन इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. एंड राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट वीकर एरियाज को एकदम फ्रेगमेंट कर दीजिए, मल्टीपल स्मॉल टुकड़ों में उसको बांट दीजिए. डरिए मत उससे कि यार ये तो बहुत बड़ा है, एनाटॉमी के इतने मसल्स हैं, या फार्मा में इतने ड्रग्स हैं, या मेडिसिन में इतने इन्वेस्टिगेशन है, रेडियो में इतने साइंस हैं. हर सब्जेक्ट के कुछ अपने प्रोज हैं, कुछ अपने कॉन्स हैं. डरना नहीं है. जो आपके वीक एरिया से आइडेंटिफाई करना है, उनको स्मॉल एरियाज में डिवाइड करना है. बाकी अगर इसमें और फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन जस्ट मैसेज इन एनी ऑफ आवर सोशल मीडिया हैंडल. विल ट्राई टू कनेक्ट टू यू विथ विच एवर वे वी कुड, है ना. तो फ्रेगमेंटेशन technique is always going to help you. You'll have to read and focus more towards the topics. Now topics के बारे में कैसे आप जानोगे? आप सबके पास अपनी PYQ की बुक है. मान लीजिए आपके पास FMG solution है, definitely it's my book. All of you guys are already aware about it. और आप पढ़ रहे हैं, वो सारे जो क्वेश्चन दिए गए वो क्या है? वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर वाले टॉपिक्स हैं. तो उन सारे प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को जब आप कर रहे हो ना, तो वही आपके टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं. द टॉपिक्स आर ऑफन रिपीटेड, क्वेश्चंस आर नॉट. एग्जैक्ट क्वेश्चन का रिपीटिशन ये पॉसिबल नहीं है ना, बट टॉपिक्स डेफिनेटली आर, है ना. बेसिक्स पे डेफिनेटली काम करना है. एंड ईच सब्जेक्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट. एज आई टोल्ड यू ना कि 19 मतलब 19, नॉट 18 एंड नॉट 17, नॉट 20, 19. ईच सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जो थोड़ा छोटा है, तो उससे नंबर भी तो कम आ रहा है. अगर कोई बड़ा है जिससे ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो बड़ा है तो ज़्यादा नंबर आ रहा है. एंड ज़्यादातर कंडीशन में मैंने देखा है कि जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, वो आपको ज़्यादा स्कोर करके देते हैं, बिकॉज यू हैव रेड इट वेरी इजीली. यू आर गोइंग टू रिवाइज इट वेरी फास्ट. अगर मैं आपको बोलूँ आज के टाइम पे, लेट्स से यू हैव रेड योर सब्जेक्ट्स लाइक साइकियाट्री, डर्मा, रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, यू हैव रेड इट, राइट. एंड इफ आई आस्क यू दैट हाउ मेनी डेज डू यू वांट और हाउ मेनी आवर्स राइट नाउ यू वांट टू रिवाइज देम, you will say, sir, hardly I need around 10 to 12 hours or 14 hours, right? So to revise this. Now when I say 12 hours to revise this one, don't just sit at a stretch for 12 hours. अब उस 12 hours में क्या करना है ना, मैं बताऊंगा अभी कैसे 4 घंटा 3 दिन में करके उसको रिवाइज करना है. एंड पैरेलल में यू आर गोइंग टू कंटिन्यू मल्टीपल सब्जेक्ट. लेट्स गो अहेड एंड सी हियर दैट व्हाई एम आई टेलिंग यू टू फोकस ऑन द टॉपिक्स, बिकॉज यू टेक आउट लास्ट 5 एग्जाम का पेपर एंड यू विल रियलाइज कि देयर आर सम टॉपिक्स दैट आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन फार्मा, सो देयर इज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इंपॉर्टेंट ADRs ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हमेशा आ रहा है. इंपॉर्टेंट टेराटोजेनिक ड्रग से एक क्वेश्चन दे आर डेफिनेटली आस्किंग. लिथियम वाला क्वेश्चन दे आर डेफिनेटली आस्किंग. इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स में जो टेबल मैंने आपको दिया है डेफिनेटली आस्किंग, है ना. इंपॉर्टेंट ऑक्यूलर साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स, जिसका टेबल भी मैंने आपको कई बार दिया हुआ, TND में भी दिया है, ठीक है, दे आर डेफिनेटली आस्किंग. सो जो कुछ टॉपिक्स हैं, इट हैज ऑल बीन समराइज्ड और आपके पास एक रेडीमेड केक दे दिया गया है. ऑल यू हैव टू डू, कट द केक, put it on the plate and eat it.
बुक को कट करके मत खाइएगा, डेफिनेटली नॉट, है ना। कट द केक मतलब बुक दे दिया गया है, अब उसको आप अपने 19 सब्जेक्ट के हिसाब से जो आप पढ़ रहे हैं, वट एवर यूर रीडिंग, डू देयर MCQs एंड ट्राई टू सी कि किस किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, एंड यू विल रियलाइज कि देयर आर फ्यू टॉपिक दैट आर रिपीटेड ना फ्रिक्वेंटली। जैसे टीबी है, पेपर बने या ना बने, टीबी से क्वेश्चन आना है, राइट। सो ये सारे जो चीज़ें हैं इसमें ऐसे ही आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स लाइक पैथो में, माइक्रो में, मेडिसिन में, दे विल हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दैट इज बीइंग रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर टॉपिक्स। नाउ जिसका आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है वो ये है कि सर टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे करें, वो आप बता दो, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल बी टेलिंग यू कि अगर आप मुझसे पूछो कि सर फिनिशिंग द सिलेबस इन ड्यू टाइम, इज इट पॉसिबल? देखिए, वट एवर टाइम यू हैड इट्स पास्ड ऑलरेडी, नाउ यू आर हैविंग हार्डली, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू 55 डेज इन हैंड। काउंट कर लो फिंगर पे 55 डेज, थोड़ा एक दो दिन ऊपर नीचे होगा तो वो आप देख लीजिए, बट 55 डेज यू आर हैविंग। यू विल बी आस्किंग सर डू आई हैव टाइम टू स्टडी एंड एंजॉय सम ऑफ द लग्जरीज ऑफ लाइफ लाइक माई फ्रेंड्स आर डूइंग, लाइक माई सीनियर्स आर डूइंग, और लाइक माई रिलेटिव्स किड्स आर डूइंग, है ना। आई वुड से आस्क योर सेल्फ डू यू हैव द टाइम। आपको जवाब खुद मिल जाएगा, यू विल से नहीं सर बिल्कुल टाइम नहीं है ना। आई विल बी नीडिंग एटलीस्ट 14 hours, 12 to 14 hours on the daily basis in which I want to study, revise, do the MCQs, and बचा हुआ टाइम में I want to take some rest and go back again to the same thing, है ना। So ABC go back to A again, ABC go back to A once again. So again finishing the syllabus in due time थोड़ा difficult है but it's not impossible, है ना। If you are going to utilize a smart study approach, it is going to be possible. What is it? Let's go ahead and talk it out. The most important part that we are having, step wise approach लेते हैं। स्मार्ट स्टडी अप्रोच में क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट, है ना। सो यू विल हैव टू पुट let's say a time bound studies, जैसे कि मैंने बोला कि for your weak areas you are going to give let's say 40 minutes on the daily basis. Example I am giving you, you can keep 45 minutes, you can keep 50 minutes, it's totally up to you, but at least 40-45 minutes though you will have to keep. So you are going to give that next 45 minutes, I am going to dedicate myself to read about let's say central nervous system का epilepsy. I'll have to read central nervous system का epilepsy in the next 45 minutes, I'll have to revise them, and I am just giving you an example. So in that time you will have to finish it. घड़ी यहाँ पे है, रखी हुई है, and you are going to stay focused, read it, check it out and go ahead. Don't just struggle in recalling things in the very first go, है ना। अगर 45 minutes time है epilepsy के लिए तो try to finish it in the let's say 35 minutes, है ना। And after 35 minutes you go back again. When you read it for the second time, when you read it for the third time, you will realize कि चीज़ें अब याद होना शुरू हो गई हैं, because when you read it in the class, we have already read it like n number of time, we have revised it n number of times, and now this is again re-revision. revision का भी revision कर रहे हैं ना आप लोग, so definitely you'll have to plan like that way, and time management is very very important, ठीक है। You'll have to study always and always goal oriented, है ना। You cannot just go blind, है ना। blind नहीं जा सकते हैं कि मैंने फार्मा स्टार्ट किया या मैंने एनाटॉमी स्टार्ट किया तो मैं n नंबर ऑफ डेज के लिए चलता जा रहा हूँ, नहीं। ऑन अ पेपर there should be a schedule that you are going to draw, right? And when you are going to sit back for the studies, for your revision, you are not going to sit with this, you are not going to sit with your phone. Why? Because sitting with phone is very very easy, getting distracted with social media is very very easy, and before even you could realize that you are scrolling and you have already lost your 1 hour or maybe more than that, because a time will come for that as well, when you will be totally free from all kind of worries and you are going to just scroll as much as you want, but again not at this point of time. मैं आपसे बस बोल रहा हूँ कि next 55 to 60 मिनट के लिए सीरियस हो जाओ। 55 to 60 मिनट के लिए बस 14 आवर्स के लिए अपनी टाइम को डेडिकेट करो कि इस समय पे all I will be doing will be studying. No social media. If you're listening to me carefully, listen to me carefully. No social media or no other source of distraction. It can be anything. This social media is just an example. It can be a bad relationship, right? It can be let's say a bad family matter. It can be a bad friendship, and it can be anything, or it can be a bad husband or bad wife. It can be anything if you're married, so anything is possible. So I would say eliminate all the sources of distraction, whichever you could. Try to eliminate all the sources of distraction that we have. You're going to plan everything ahead of time. Setting the realistic goal is very very important. For example, if I say that I'm going to finish my entire pharmacology in next 10 hours, है ना, तो अगेन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज दैट इज माई ब्रेड एंड बटर। आई एम रीडिंग दिस ऑन द रेगुलर बेसिस। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग आई एम रीडिंग। लेट्स से व्हेनेवर आई एम नॉट स्लीपिंग आई एम रीडिंग अबाउट इट और आई एम थिंकिंग अबाउट इट। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, दैट इफ यू आर प्लानिंग दैट 10 आवर्स में फार्मा खत्म हो जाएगा, एनाटॉमी खत्म हो जाएगा, दैट्स नॉट रियलिस्टिक।
because if you're not able to set a realistic goal, you will not be able to achieve it. If you'll not be able to achieve it, again that is going to backlash, that is going to create a negativity inside yourself, है ना, that is further going to pull you down, है ना. तो again realistic goal को set करिए. Let's say you are going to plan your study for 12 hours. So this 12 hour is just the study का quality study hours. To finish this 12 hours, you will be needing around 14 hours or maybe 15 hours. Because after 2 hours of study, or let's say after 90 minutes of study, you are going to have a break, है ना, you will be having a break, है ना, so 15-20 minutes का break, and again you will continue with the same kind, right. So to finish a 12-hour study, you need at least 14 to 15 hours, है ना. तो 14 से 15 घंटा जो बच्चा पढ़ाई करेगा उसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा 6 hours के लिए. भाई कैसे भी सो लो, है ना, all I want is a 6 hours of sleep so that I can get ready for the tomorrow's war once again, है ना. So study with frequent breaks and avoid the futuristic thought. Many of the students are messaging me. That's why I have especially brought this point that students are having futuristic thought. One of the example, my previous exam was bad. What if January exam will also have same kind of paper? My senior failed. What if the paper will be very, very difficult? What if I will not be able to do this or that, है ना. What if I am not able to do this or that, है ना. So anyway, whatever that is the futuristic thought or the negative thought, try to eliminate it, है ना. Do you know what kind of paper is going to come? No. Do I know? No, right. We don't know. Can you do something about it? No. Can I do something about it? No. Why worry about it? It's as simple as that. If we cannot do something about it, why worry about it, है ना. So again, avoid the futuristic thought. But can you study right now? Can you plan today and study? Can you make a realistic goal and study? Yes. So do whatever you can rather than worrying about what I cannot, है ना. So you are going to start with the schedule, you know, you are going to draw it on a paper. So along with me also you can make it and you can draw it. Like for example, let's say you are having around 55 days. So for this 55 day, I am going to put it in 3 important areas. So first I put it in 30 days, but 30 days may I was not able to do. So according to my math, I said that if you are following me, 32 day, 15 day and 8 day. ठीक है. So that will be somewhere around 55 days, है ना. 55 डेज का शेड्यूल है. अब इस 32 डेज को कैसे यूटिलाइज करोगे? फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन 15 डेज का कैसे करोगे, एंड 8 डेज में क्या करोगे? तो मिनिमम आई एम आस्किंग कंप्लीट रिवीजन, एटलीस्ट 2 रिवीजन तो आप कर ही लो. एंड ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चे, बट मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा अपने माइंड सेट को बना के रखिए. मैं बता रहा हूँ ये पॉसिबल है. यू विल बी एबल टू अचीव इट, है ना. इट्स ऑल अ माइंड गेम. टू ऑल माई एग्जाम एस्पिरेंट्स, what is the master plan? So let's say I'm having 55 days, and in this 55 days how am I going to utilize it? So try to finish the first revision before the December 27th. So let's say you are starting from today, है ना, and you are having around 30 to 33 days, है ना. So in the first 30 to 33 days, try to finish it before December 27. Second one is going to be from December 28 to January 11, and after that in the last one, है ना, जो December 12 to 19 वाला है, where there we are having 8 days time here. In these 8 days time, you are going to do PYQ topics, important PYQ topic. बिकॉज अब इसमें पूरा अगर आप करने जाते हो, या इफ़ यू आर गोइंग टू फिनिश लेट्स से ए सब्जेक्ट, यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट. तो मेनली मैं बताऊंगा कि PYQ टॉपिक्स, यू कैन ऑल्सो डू ऑल द हाई यील्ड टॉपिक्स, जो कि यूजुअली हमने ऐप में भी दे रखा है. वी ऑलवेज यूज टू गिव यू इन द यूट्यूब सेशन एज वेल, है ना. अभी एक यूट्यूब सेशन भी आने वाले टाइम में आएगा जिसमें हाई यील्ड MCQs वाला सेशन रहेगा. उसके टॉपिक्स को आपने करना है ना. और लेट्स से सम नंबर और डेटाबेस स्टडीज. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टडी एटलीस्ट 10 IPCs, है ना. तो 10 इंपॉर्टेंट IPC, जैसे मान लिया आपको पढ़ना है कि 312, 13, 14, 15 क्या होता है, तो एटलीस्ट ये हो गया. नाउ हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, इंटेंशनली वाला क्या होता है ना, इंटेंशन टू हर्ट विद इंटेंशन टू कॉज मर्डर, है ना, जो भी है. मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस डिटेल्स, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट ट्राई टू हैव दोस काइंड ऑफ शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट लास्ट 8 डे वाला चीज़ है. एंड एटलीस्ट लास्ट 8 डे में एटलीस्ट 1 GT, लास्ट 8 डेज में एटलीस्ट इतना कर लो, है ना. इफ़ यू हैव मोर टाइम, डेफिनेटली यू इफ़ यू कैन स्क्वीज डाउन फ्रॉम योर अदर एरियाज, डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल. बट मिनिमम मैं ये बोलूँगा PYQ टॉपिक्स को देखना, हाई यील्ड टॉपिक्स को देखना है, एंड नंबर बेस और डेटा बेस जो भी है, जैसे PSA में कुछ है, IPCs कुछ है, उनको देख लेना है ना. एंड इम्पॉर्टेंट ड्रग ऑफ ना, इम्पॉर्टेंट प्रिफर्ड ड्रग्स,
इन डिफरेंट कंडीशंस, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट टेबल्स मैंने दे रखे हैं ना, आप देखोगे ऑलमोस्ट विद आफ्टर एवरी चैप्टर इन द फार्मा नोट्स, और लेट्स से यू आर पिकिंग एफएमजी सॉल्यूशन, सो इन द एंड आई हैव गिवन दैट नो हाई यील्ड टेबल्स, है ना। एफएमजी सॉल्यूशन में देयर इज अ सेकंड बुक, नो, तो यू कैन यूटिलाइज दैट सेकंड बुक एज वेल इन द लास्ट 8 days, है ना। तो एटलीस्ट ये दोनों रिवीजन को कैसे प्लान करोगे, लेट अस सी इन योर मास्टर प्लान। आई वुड से 12 to 13 hours a day. Now you will be asking, sir, this 12 to 13 hours, should I continue one subject from morning to evening? A big no. The answer is a big no, है ना. It has been tested, it has been tried, but it has been failed badly. So a big no. I would say that इसको आपको divide करना at least 3 part में. You are going to divide at least 3 parts, 12 to 13 hours. So let's say you are taking a subject that you are going to give 3 hours. Then you are going to give another subject that is 5 hours, है ना. और एक सब्जेक्ट को दोगे आप 2 घंटे. Depending on your own skill, you can do some changes in this one. जैसा कि मैंने बोला, to finish a 12-hour study, you need a 14 to 15 hour. ऐसा नहीं कि 12 आवर बोल दिया तो बाकी 12 घंटे होंगे ना, वो सिर्फ कहने के लिए है ना, वो पॉसिबल नहीं है. कहने सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जैसे मैं बोलता हूँ सेट रियलिस्टिक गोल, वैसे ही रियलिस्टिक शेड्यूल भी बनाना है, ठीक है. सो 3 आवर्स में, लेट्स से 3 आवर्स यू हैव स्टडीड, यू हैव डन अ सब्जेक्ट, लेट्स से यू हैव डन एनाटॉमी. 5 आवर्स में इसके साथ मान लीजिए आपने साथ में स्टार्ट कर दिया सर्जरी, और 2 आवर्स में यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्थोपेडिक्स. तो ये आपका हो गया, ठीक है. 3 + 5 + 2. अब 3 आवर्स है तो यू कैन मेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स इन बिटवीन. 5 आवर्स है तो देयर कैन बी अगेन 1 or 2 ब्रेक्स, 2.5 आवर्स करते हैं, या मिनिमम आई वुड से 1.5 आवर्स पे ब्रेक इज ओके. टेकिंग अ ब्रेक इज मच बेटर, बट मेक श्योर द ब्रेक ड्यूरेशन डज नॉट गेट एक्सटेंडेड, बिकॉज आपके फ्रेंड आ जाते हैं, आपके मोबाइल बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन. मैं बता रहा हूँ, आधी से ज़्यादा पब्लिक तो इसलिए परेशान है क्योंकि दे आर लूजिंग देयर टाइम इन द मोबाइल. इफ़ यू आर कंसिडरिंग अस एज योर मेंटर, इफ यू आर कंसिडरिंग अस कि सर ने जो बोला है उनकी बात सुन लेना है, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले अपने सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट करो. वहाँ से कोई पढ़ाई नहीं होनी है, मैं बता रहा हूँ. इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ाई नहीं होनी है. जो मैक्सिमम पढ़ाई होगा, जहाँ से क्वेश्चन पिक किए जाएंगे, वो आपके बुक से आएगा, वो आपके नोट से आएगा, ठीक है. इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है आपके लिए, ठीक है. सो अगेन you are going to do this one 2 to 3 subjects per day. Remember, never one subject, because अगर मान लीजिए एनाटॉमी आज शुरू किया आपने, 2 दिन में ख़त्म कर दिया, तो फिर एनाटॉमी आपसे 40 दिन के लिए आपसे दूर है. आई वॉन्ट यू टू स्टे इन टच विद वन सब्जेक्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. सो लेट्स सी कि कैसे करोगे. अपना जो भी शेड्यूल है, यू आर गोइंग टू डिसाइड इट अहेड ऑफ टाइम. सो वी आर हैविंग 19 सब्जेक्ट, है ना. कैसे इसको प्लान करना है, दिस शेड्यूल एज आई एम टेलिंग यू कि फ्रॉम लास्ट 6-7 years आई हैव बीन टेलिंग द स्टूडेंट्स कि फॉलो दिस वन, दे हैव फॉलोड एंड दे हैव गिवन ब्रिलियंट रिजल्ट्स. एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ. मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं, एनाट, फिजियो, बायोकेम. दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज इन द एग्जामिनेशन. सो इफ आई आस्क यू राइट नाउ कि सर बता दो कि एनाट, फिजियो, बायोकेम को रिवाइज करने में कितना टाइम लगाओगे, बिकॉज यू आर हैविंग फर्स्ट गो कितने दिन का है, 32 days. नाउ इन दिस 32 days ओनली यू विल हैव टू फिट थिंग्स, है ना. हो सकता है एट सम प्लेसेस, लेट्स से योर बायोकेम इज वेरी स्ट्रॉन्ग. So if your biochem is strong, finish biochem in 1 day, put that half day in physiology or your anatomy or whichever area is a little weak, है ना. But if you are thinking सबका सब सेम है, एक जैसा ही है, then I would say 1.5 days. So 1.5 totally it will become 4.5. तो आई एम कंसिडरिंग, चलो 5 days ले लो. मान के चलो कि आपने 5 days में एनाट, फिजियो, बायोकेम. क्या मैं सर एक साथ करूँ? नहीं, वो सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन मैं बता दूंगा आपको. पहले देख लेते हैं काउंट, 32 days को कैसे हमने काउंट किया, उसको मैं बता देता हूँ. सेकेंड वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज बिगर सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, सर्जरी, गायनी. सो राइट नाउ सिंस वी आर हैविंग 30 days एंड वी हैव टू फिट दिस वन, तो सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, दिस आर बिगर सब्जेक्ट एंड दे आर बिगर चंक्स. सो दे आर हियर यू आर गोइंग टू गिव 3 days. नाउ a little bit of changes you can do. Let's say hypothetically speaking कि आपका मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है. अगेन आई एम टेलिंग हाइपोथेटिकली बिकॉज इट्स अ बिग सब्जेक्ट, है ना. या लेट्स से आपकी ओबीजी स्ट्रांग है ना. दैट इज पॉसिबल. मेनी स्टूडेंट्स आर गुड इन ओबीजी बिकॉज दैट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, है ना. सो अगर ओबीजी स्ट्रांग है तो यू कैन फिट हियर सब्जेक्ट विच यू थिंक दैट यू आर लिटिल वीक, लेट्स से फार्मा, है ना, और पैथो, विच एवर एरिया दैट यू थिंक, है ना, यू कैन पुट इट हियर. तो स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके यू कैन यूटिलाइज दिस. सो मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी और मेडिसिन, सर्जरी, फार्मा, यू आर गोइंग टू टेक 3 days each. Total of 9 days will be there. Patho, pharma, PSS 2.5. So 2.5, it will be 7.5. So on an average I have taken around 8 days for subject like patho, pharma, PSM.
ENTpedia, Ophtha, Micro, subjects like this you are going to give one day because that is the day that we are having. So total of 4 days of this one. And prof subject, that is psychiatry, radio, ortho, anesthesia, forensic and derma, you are having one day each, so total of 6 days. So we are having, see, 5, 9, 8, 6 and 4. So 6, 4, 10, 8, 18 and 18 to 20, 27 and 5, 32, right? So we are having roughly around 32 days for the first go, and if you are going to follow very strictly, then you are going to finish this. Now there are chances, some of you may think कि sir मेरा psychiatry तो better है and I can finish my psychiatry in, let's say, 6 to 7 hours. I would say well and good, utilize that extra time in somewhere where you are weak, है ना. तो जो अभी आपका वीक एरिया है आप उनमें वो एक्स्ट्रा टाइम दे दो, है ना. सम ऑफ यू में से सर मेरी फॉरेंसिक स्ट्रांग है, आई कैन फिनिश इट इन 8 आवर्स. अगर मैं बैठूं 4-4 घंटे का 2 या लेट से 2-2 घंटे का 4 दिन में लेके करूंगा तो आई विल बी एबल टू फिनिश माय फॉरेंसिक. इनफैक्ट द माइनर सब्जेक्ट्स दैट आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर एबल टू डू इन लेट्स से 6 to 7 आवर्स और 8 आवर्स, देन आई वुड से ट्राई टू फिनिश इट 1 to 2 डेज ओनली. उसको लंबा मत खींचो, है ना. ट्राई टू फिनिश इट इन 1 to 2 डेज ओनली. दी आर जस्ट सैम्पल स्टडी शेड्यूल, यू कैन मेक अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस अगेन, है ना. तो जो छोटे सब्जेक्ट है जिनको आप 6 से 8 घंटे में, 8 से 10 घंटे में कर सकते हो, उनको 2 दिन में मैक्सिमम खत्म कर दो. थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के ऊपर करते हैं एंड कीप ऑन एडिंग द नेक्स्ट सब्जेक्ट इनटू दिस वन, है ना. जब तक आप इसको पेन डाउन नहीं करोगे, until you are not going to put it on a paper, you will not be able to understand, you will not be able to follow it very correctly. So I am telling you the 32 days का first है. Next one that we are having second and third reading. Second reading as I told you is for 15 days. So 15 plus 8, 23 days is left after this one. So 15 days का again the revision. तो अब जो भी days था almost try to reduce it by half, है ना. तो अब जहाँ पे आपने साइकियाट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, फोरेंसिक एक दिन में किया था, now you will have to finish it in 5 to 6 hours. That is the only thing that we are having, है ना. आपको करना क्या है, you are not going to force yourself to remember and recall everything like a teacher does. No. All you have to do in that 6 to 7 hours when you're going to read, at least flip the pages of the notes. You have read it already, you try to ask question on that, or you can do question of that topic, let's say 3-hour question, 3 hour of notes, है ना. Or you can do question wherever that question is getting wrong, आप retrospectively notes पे जा सकते हैं, है ना. You start doing question, if you're able to solve, if you know why behind that question, well and good. If you are making mistake, retrospectively जाइए, open your notes and see कि okay, what are the things that were there and where did you make mistake, because silly mistakes are only going to be picked if you are going to solve the MCQs, है ना. So again you will have to continue MCQ definitely as a part of your revision, है ना. So this is how you are going to make second and third revision, a total of 55 days that we are having. अब example मैं दे रहा हूँ आप a daily based plan. So let's say you are going to study 12 to 14 hours a day, and to complete a 14 hours of study again you need 16 hours. So since your examination is on the little brutal side, है ना, the schedule is on the brutal side. Why? Because see 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, उसको रिवाइज करना है, उसको रिटेन करना है, फिर जाके एग्जामिनेशन में उसको, है ना, आपको परफॉर्म भी करना है. तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस हियर, है ना. तो योर सिस्टम इज समथिंग दैट यू कैन नॉट, है ना, राइट नाउ यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट. सिस्टम को आप कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज कंप्लेन करने जाओगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे. तो दो में से एक करोगे, या तो कंप्लेन कर लो या पढ़ाई कर लो. तो अगेन मेरा आइडिया ये, मेरा सजेशन ये, बेहतर ये है कि आप पढ़ाई कर लो. तो एक सैंपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्ट फिजियो, फार्मा, एनेस्थीसिया. तो फिजियो आई एम गोइंग टू डू फॉर 4 आवर्स, फार्मा आई एम गोइंग टू डू फॉर 4 आवर्स, एनेस्थीसिया आई एम गोइंग फॉर 2 आवर्स. ठीक है. तो क्या होगा, फिजियो, फार्मा, एनेस्थीसिया 4 + 4 8 and 2 hours 10 hours हो गया. If you want, you can increase it a bit. If you think that my sitting capacity is little on the higher side, you can increase. So what you can do, you can add MCQ to this one, है ना. So let's say you have read your general pharma or ANS or CNS, whatever you read, उसका MCQ कर लीजिए, है ना. So that you can compensate for this one. जब आप 10 घंटे का प्लानिंग करोगे ना, तो this 10 hours will be done in 12 to 13 hours. तो अगर आपके पास 2 घंटे का या 2.5 घंटे का स्ट्रेच है तो ओपन MCQ, बिकॉज बिना MCQ किए तो सोना नहीं है. आपको MCQ तो करना ही है. यू हैव टू डू MCQ. विदाउट MCQ यू कैन नॉट गो ऑफ टू स्लीप. अनदर इंटीग्रेटेड वाला एनाटॉमी, सर्जरी, ऑर्थो. तो आई वुड से सी एनाटॉमी यू गिव 3 hours, सर्जरी यू गिव 5 hours, ऑर्थोपेडिक्स यू गिव 2 hours. ठीक है. एंड नाउ दिस इज a 3 subject plan. If you think that you want to do 2 subjects, that's absolutely fine, it's okay. So in that case scenario, you can give orthopedics, let's say 4 hours, and rest of the time you can give to surgery, and you finish orthopedics, let's say in the next today and tomorrow, that is in 2 days only.
ठीक है। सो 2 से 3 सब्जेक्ट डेली बेस लेके चलना है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दैट इज अ 3 सब्जेक्ट प्लान। यू कैन मेक योर सेल्फ, है ना, इसी को यूटिलाइज करके यू कैन मेक अ 2 सब्जेक्ट प्लान, बट नेवर 1 सब्जेक्ट, है ना, ऑलवेज नंबर, एंड नेवर 4 सब्जेक्ट ऑल्सो, है ना। 4-5 सब्जेक्ट में फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर आदमी बड़ा डिस्टर्ब रहता है ना। बायोकेम, ओबीजी, पीडिया, तो आई हैव टेकन दिस सब्जेक्ट इन द फॉर्म कि कहाँ से किसका इंटीग्रेशन हो सकता है, सो दैट यू कैन यूटिलाइज द इन्फॉर्मेशन ऑफ 1 सब्जेक्ट इन द अदर सब्जेक्ट। पैथोमाइक्रोडर्मा, so again पैथोमाइक्रोडर्मा is you can put like 5 hour, 3 hour, 2 hour, है ना। ENT ophthalmology 3 hours, 3 hour, 2 hour, है ना। So if you are going to put 3 hour, 3 hour, 2 hour, you will realize कि after every 2 to 3 days, after every 3 days or 3 to 4 days, you are finishing 3-4 subjects together, है ना। 3 सब्जेक्ट एक चंक में खत्म होते जा रहे हैं, and believe me, once you follow this one and again staying away from the distraction that I discussed with all of you guys, I am pretty sure that you guys will be able to do it. थोड़ा डिफ़िकल्टी है, लेकिन आपने डिफ़िकल्ट राह भी तो चुना है, आपने डिफ़िकल्ट कोर्स भी तो चुना है ना। तो डिफ़िकल्टी तो आएगा ही। अगर आसान होता तो सब लोग कर रहे होते हैं, है ना। आप कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो ही कर रहे हैं आप, है ना। नाउ एक और शेड्यूल ये जो मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट चीज़, ये एक टेबल है जो मैं बार बार बच्चों को देता हूँ। ये टेबल मैंने ड्रॉ किया था, आई रिमेंबर बहुत पहले स्टूडेंट्स के लिए अपने ड्रॉ किया था, 2013-14 में मैं ड्रॉ किया था, एंड आई फ्लोटेड इट द प्रिंट आउट, है ना। उसमें ऑनलाइन का बहुत कम चलन था, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यूज इट, और हर लाइब्रेरी में ये होता था बच्चों के, है ना। सो दे यूज टू कीप, एंड एवरी टाइम दे आर गोइंग टू फिनिश, लेट्स से दे फिनिश फिजियो क्लास नोट्स, है ना, दे फिनिश इट्स MCQ और दे डिड FMG सोल्यूशन, है ना। अगर TND कोई ज्वाइन किया तो TND नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वट एवर सब्जेक्ट, लेट्स से यू आर स्टार्टिंग, है ना, टुडे यू आर स्टार्टिंग लेट्स से फार्मा फिजियोलॉजी, और यू आर स्टार्टिंग लेट्स से वन मोर सब्जेक्ट एनेस्थीसिया, है ना। So as soon as you finish pharma, you can keep on this one. Now at a glance, whenever you are going to do this one, at a glance you will realize कि you have done n number of subject and these are your goals for the next few days. आप अपने जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं आप उसको इसको स्टिक कर लीजिए। इसका एक कॉपी चाहिए तो I will circulate the copy also in our Telegram group of LNX and also in the Telegram group and other social media handle that I am having. हर जगह पे इसको पोस्ट कर दूँगा, अगर चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, I'll just provide a copy of this one. You can have a copy of this one, right? तो इसको आप यूटिलाइज करके एट ए ग्लांस आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना तक गया है। मान लीजिए आपने फिजियो फर्स्ट गो में कर लिया, सेकंड गो में भी कर लिया, है ना। FMG सॉल्यूशन का भी आपने किया था, जो भी क्वेश्चन गलत हुए थे आपने सेकंड टाइम में आके एटलीस्ट एक बार चेक कर लिया, यू हैव चेक्ड इट ऑलरेडी कि भाई हो गया। एक्स्ट्रा में लेट्स से द LMR नोट्स जो FMG सॉल्यूशन के साथ आ रहा है, आपने उसको एक बार देख लिया कि नहीं, या आपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया कि नहीं, है ना। तो वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में आ जाएंगी। इफ़ यू हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा, आप यहाँ लिख दीजिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो आप, है ना, एंड जस्ट कीप इट ना, कीप अ टिक ऑन इट, और यू कैन कीप अ प्लस ऑन इट, सो दैट एटलीस्ट पता चलता रहेगा आपका प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। व्हाट शुड बी योर सोर्स ऑफ स्टडी? आई वुड ऑलवेज से दैट मेक इट वेरी वेरी सिंपल। डोंट बी अ कलेक्टर ऑफ नोट्स, बी अ रीडर ऑफ नोट्स। कीप इट वेरी वेरी सिंपल, नोट्स और नोट्स के साथ बुक। FMG सॉल्यूशन को कभी भी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो MCQ बैंक है, ऑल्दो करते करते थोड़ा बड़ा हो गया है, वो क्वेश्चन बैंक नहीं है, वो एक्चुअली वो पूरा समरी है आपके 19 सब्जेक्ट का। तो सोचो ना, 19 सब्जेक्ट को अगर मैं 1700 पेज में डाल रखा हूँ तो 1 सब्जेक्ट के लिए लेस देन 100 पेज आया ना, तो उससे कम क्या करेंगे। बट एंड अगेन इन अपकमिंग डेज वी आर वर्किंग ऑन इट, दैट विल सी। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट दैट। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि डोंट बी फ्राइटेंड बाय द साइज, बिकॉज इफ यू हैव डन द नोट्स इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। वहाँ पे आपको फोकस ये रखना है, जितना भी एक्स्ट्रा माइल टेबल दिया हुआ है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एज वाले जो टेबल्स हैं विच इज गिवन ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी एक्सप्लेनेशन, एटलीस्ट उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी रिविजन। दिस इज द की टू एनी ऑफ द एग्जामिनेशन दैट वी हैव, नीट PG, FMG, INICT, कोई भी एग्जामिनेशन है ना। इफ रिविजन इज नॉट देयर द प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीट, है ना। क्लास नोट्स प्लस FMG सॉल्यूशन, रिविजन, go back to again the first one. Keep it very very simple and you start giving grand test. Many of you must be asking, sir कब से देना है grand test? अभी से देना है grand test. Many of you may be saying, sir मेरा तो सिर्फ 10 सब्जेक्ट हुआ, कोई बात नहीं। Perform in those 10 subjects. See out of those 10 subject how much of the mark you are able to do it. है ना। अगर 10 सब्जेक्ट में से करके अगर आपका 120, 100 प्लस स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। थोड़ा सा और पुश करते रहिए ऑन द डेली बेसिस, कीप पुशिंग योर लिमिट्स ऑन द डेली बेसिस, थोड़ा थोड़ा पुश करिए। ग्रैंड टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लास्ट वाले वीक में जो मैंने बताया था, इन द थर्ड वाले में, लास्ट 8 डेज में एक GT को जरूर रखिएगा, विच शुड बी एटलीस्ट 4 to 5 days prior to the examination, 4 to 5 days prior, not a night before examination. Please never do a GT, never give a GT prior to, just night before the examination. That's a very bad practice. At least
days, 4 to 5 days, a week or a week before your examination you can give, and accordingly you can do a slight modulation in your schedule and you can continue to revise, right? So जैसा कि मैंने आपको बताया कि you will have to keep pre-made schedule, you will have to get up, है ना, सोने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सुबह मुझे क्या पढ़ना है. It should be a pre-made schedule, है ना, and I'm pretty sure that if you guys are going to follow the schedule something like this, है ना, the success will be all yours, है ना. So with this I will take your leave. I hope that I was able to provide a valuable suggestion here and a valuable schedule for all of you guys, and you will be utilizing it very effectively. At any point of time if you feel stuck up or if you feel कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, सर भूल रहा है, it's absolutely fine, normal है, भूलना normal है, भूलता वही है जो पढ़ता है, जो पढ़ेगा ही नहीं वो भूलेगा नहीं, है ना. तो इफ़ यू आर फीलिंग सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स, इट्स ओके, वंस यू सी द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू रिकॉल इट, है ना. तो हमेशा थोड़ा काम मेंटेन करिए, एंड इफ़ यू नीड टू हैव अ सपोर्ट वी आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर हाउ टू रीच आउट टू अस, है ना. तो हम बस एक क्लिक अवे हैं, वी विल जस्ट बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, एनी ऑफ द फैकल्टीज एट LNX विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, राइट. सो विद दिस थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, आई विल सी यू अराउंड, and I'm planning to have a session for all of you guys that is known as your FMG solutions decoded. FMG solutions decoded एक सेशन मैं प्लान कर रहा हूँ, that is going to be on December 11, 12, 13, where all the important topics, important subjects, I would say maximum subjects, I am not promising 19 but I will try my best, है ना. We will be discussing majority of the book. एक बार मेरे साथ आपको मैं बुक करवाऊंगा, है ना. तो आप आइए, 8 से 10 घंटे का यूजुअली क्लास होगा इन दिस वन, एंड विल ट्राई टू फिनिश द बुक रैपिडली. तो आप सोचिए ना कि एक बड़ा सा बुक है जिसको देखे आप डर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ उस बुक को आओ मेरे साथ सॉल्व करो, है ना. तो ऑथर के साथ पढ़ने का मजा ही अलग है ना. कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो आपसे डिस्कस हो जाएगा, कैसे आपके डर को दूर करना है वो भी डिस्कस हो जाएगा. तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे 11, 12, 13 दिसंबर क्लास में. ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन. द ओनली थिंग इज दैट कि सीट थोड़ी लिमिटेड है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. तो यू कैन चेक आउट इन आवर सोशल मीडिया हैंडल और आवर इंस्टा और आवर टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ किस नंबर पे कॉल करके, एंड यू हैव टू रजिस्टर. सिंपली कॉल करके रजिस्टर कर देना, आपका नाम, आपके पास रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगा, एंड आई विल सी यू इन दिस क्लास एज वेल. इन इस क्लास में भी अगर आपको कोई और डाउट होगा तो we'll be able to take that as well. So with this, thank you very much to all of you guys. I'll see you around.